دکھائے گئے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی قوموں کو دیکھا، کسی کو عذاب ہو رہا ہے، کسی کی نیکیاں اتنی اچھی ہے کہ بوتائے بیچ کھیتیاں ایک ہی دن کے اندر کچھ لمحوں کے اندر کھیتی کاٹنے کے لائق ہو جاتی ہے، پھر کھیتی کو کٹ کر لیتا ہے تو پھر ویسے ہی کھیتی دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس سفر کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا تھا جن کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو لوہے کی قینچیوں سے قطرے جا رہے تھے، لوہے کی قینچیوں سے قطرے جا رہے تھے ہونٹ اور زبان کو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی ہونٹوں کو قینچی سے قطرا جا رہا ہے، زبان کو قطرا جا رہا ہے، آخر یہ لوگ کون ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہی ہے، جن کو یہ سزائیں ہو رہی ہے، سزائیں دیا جا رہا ہے، ہونٹ کاٹا جا رہا ہے، زبانیں کاٹ دی جا رہی ہے، پھر وہ اپنی اپنی حالت میں کچھ ہی لمحوں کے اندر آ جاتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں نصیحت کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن عمل کرنے والے نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آقا مدنی نے دیکھا معراج کی شب کے اندر کہ ان کی زبان کو اور ان کے ہونٹوں کو لوہے کی قینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مسجد اقصی پہنچتا ہے، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، ملک شام پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت بیت المقدس فلسطین دیش میں پڑ رہا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد روایت کے اندر ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سواری کو باندھا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنی چھوٹی انگلی سے ایک پتھر کو سوراخ کیا اور پھر اس سے پتھر سے جس میں سوراخ کیا تھا اس پتھر میں سوراخ میں گھسا کر کے براق کو باندھ دیا گیا۔ اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر ہے کہ میری سواری کو وہاں پر سوار رکھا گیا، میری سواری کو وہاں ٹھہرایا گیا جہاں پر پہلے سے تمام انبیاء علیہ السلام کی سواری موجود تھی۔ ایک روایت کے اندر ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں میری سواری کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، میری سواری کو وہاں پر رکھا گیا جہاں پر تم لوگ اپنی سواری کو رکھتے ہو، جہاں پر تم لوگ اپنی سواری کو باندھتے ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سواری باندھ دیا گیا مسجد کے اندر جاتے ہیں تو مسجد میں تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ معراج کی شب میں مسجد اقصی کے اندر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام مسجد میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت شیس علیہ السلام موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہود علیہ السلام موجود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام موجود ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ روایت کے اندر ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اذان پکارتے ہیں، اذان ہونے کے بعد جو ہے اذان ہوتی ہے اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی سب درست ہوتی ہے، تمام انبیاء موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہے۔ اب تمام انبیاء کا دل میں خیال ہے، حضرت آدم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں تمام بشر کا باپ ہوں، تمام انسان کا باپ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے مجھے پیدا
वादा किया है, मुझे जन्नत में रहने का शर्फ हासिल है, आज हो ना हो मुझे इमामत का शर्फ मिलेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर बात खटकती है, सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत सारे इम्तिहानात में आजमाया, लेकिन मैं तमाम इम्तिहानात में कामयाब हो चुका हूँ। बेटों की कुर्बानी मांगा, उसमें कामयाब हुआ। औलाद को गैर ज़ी ज़रअ में छोड़ने कहा, उसमें कामयाब हो गया। बुतों को तोड़ने कहा, उसमें कामयाब हो गया। इन तमाम एग्जाम में पास हो चुका हो ना हो आज इमामत का शर्फ मुझे मिलेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिल में ख्याल कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे तूफान नूह के अंदर मेरे कश्ती को बचाया है, 40 दिन मैंने कश्ती के अंदर रहा हूँ, मेरी अदा रब को मंजूर हो, मुझे इमामत का शर्फ हासिल होगा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी सोचते हैं कि मैंने बनी इस्राइल की खिदमत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आता है कि मैं तो अल्लाह से कलाम किया हूँ, मैं तो अल्लाह से बातें किया हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, हो ना हो आज इमामत का शर्फ मुझे मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है, हो ना हो जब बनी इस्राइल ने यहूदियों ने मुझे कत्ल करने के दर पे आया तो अल्लाह ने मुझे अर्श पे उठा लिया, मुझे आसमान पर उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि मुझे आज इमामत का शर्फ हासिल हो। अल्लाह ने मुझे इतनी शान दी है, इतनी इज्जत दी है कि जब मेरे ऊपर जुल्म किया गया, जब मुझे कत्ल के दर पर दुश्मन आए तो अल्लाह ने मुझे आसमान पर उठा लिया। आज हो ना हो इमामत का शर्फ मुझे मिलेगा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अपने अच्छाइयों को पेश कर रहे, दिल में सोच रहे हैं कि आज मुझे इमामत का शर्फ मिलेगा, आज हमें इमामत का शर्फ मिलेगा। तमाम अंबिया अपने अपने दिल में खुश हैं, सोच रहे हैं कि किनको यह शर्फ मिलता है। रिवायत के अंदर आता है, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी यही सोच रहा था, मेरे भी ख्यालात के अंदर यही बातें थी कि आज इमामत कौन करेगा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है, बड़े बड़े नबी मौजूद है, दादा आदम मौजूद है, खलीलुल्लाह मौजूद है, कलीमुल्लाह मौजूद है, ज़बीउल्लाह मौजूद है। आज इमामत कौन करेगा। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अभी सोच ही रहा था, मेरे दिल के अंदर ख्याल आ ही रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दस्त पकड़कर इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया, मेरे दस्त पकड़ करके आगे बढ़ा दिया, इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया, आगे पेश कर दिया। मेरे भाइयों जरा और कीजिए, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए पेश कर दिया गया। हमारे नबी बाद में आए, लेकिन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम बना दिए गए। क्यों? इसलिए कि आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया, उनकी बेइज्जत बाद में हुई, उनकी पैदाइश बाद में हुई। इसलिए कि जन्नत में जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया, जब उसके अंदर रूह फूंकी गई, हजरत आदम ने जब आंख खोला तो अर्श इलाही पर जो सबसे पहला शब्द लिखा हुआ देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। यानी हजरत आदम से भी पहले कोई बरगुज़ीदा बंदे का अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम किए हुआ था, और वो बंदा कोई और नहीं, वो हमारे नबी और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यही वजह जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुए जमीन पर उतार दिया, कई साल तक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। आखिर में एक रोज अचानक याद आती है, अचानक याद आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जब जन्नत में पैदा किया तो मैं अर्श पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ एक नाम देखा था, क्यों ना मैं उस नाम की बरकत से दुआ करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में जब ये बातें आती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं और रब की बारगाह में कहते हैं कि अल्लाह मैं कई सालों से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मेरे दुआ को कबूल कर दे। आज मैं तुमसे उस शख्स के नाम के साथ दुआ कर रहा हूँ जिनका नाम मैंने अर्श इलाही पर तेरे नाम के साथ लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। गैब से आवाज आती है कि आदम तुमने रसूलुल्लाह को देखा है?
आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, मैं तो देखा नहीं, लेकिन मेरे रब जब तूने मुझे पैदा किया, जब मैंने जन्नत में आंखें खोली, तो सबसे पहले मैंने तेरे नाम के साथ इस नाम को लिखा हुआ देखा था। उस वक्त मैं समझ गया था कि मेरी हस्ती से भी कई गुना ऊंचा किसी की हस्ती होगी, और मुझे आज वो बातें और वो लिखे हुए जो मैंने पढ़ा था मुझे याद आया। इस वजह से मैं उसकी बरकत से, उसके वसीले से मैं दुआ कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा कि आदम, अगर उसका पैदा करना मकसूद ना होता तो तुझे भी पैदा ना करता। मेरे भाइयों, बरकत आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो उनकी दुआ कबूल हो जाती है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम हुआ कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले पैदा किया, लेकिन उनकी वलादत बाद में हुई, नबूवत बाद में मिली, लेकिन नूर से आका मदनी को पहले ही अल्लाह ने पैदा किया। इसी वजह से रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया बनाना सोचा तो नूर को जो है कई हिस्सों में तकसीम कर दिया, कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने दुनिया को बनाया, दुनिया की चीजों को बनाया, और फिर उसी नूर से तब्दील होते होते हमारे नबी पैदा हुए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के अंदर शब मिअराज की रात में इमामत करते हैं। यह इमामत करना आपको आला दर्जा नहीं देता, बल्कि आप पहले से ही आला थे। अगर इमामत नहीं भी करते, मौलाना कासिम नवाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अगर आपको इमामत का शर्फ हासिल नहीं भी होता तो फिर भी आपकी मर्तबे में जर्रा बराबर बढ़ोतरी नहीं होता या कमी नहीं होता, बल्कि अल्लाह ने आपको वो मर्तबा ही दिया है जिसमें कमी बेशी हो ही नहीं सकता। बल्कि लोगों को समझाने के वास्ते वाकई मेराज के अंदर आपको इमामत का शर्फ हासिल किया है, ताकि कोई इश्काल ना करे, कोई आपके ऊपर एतराज ना किए कि किसी दूसरे का था मोहम्मद ने छीन कर खा लिया, मोहम्मद ने छीन के मर्तबा ले लिया। बल्कि अल्लाह ने आपको पहले से जो मर्तबा दिया था उस मर्तबा को बरकरार रखते हुए जो है आपको ये शर्फ हासिल कर दिया गया। आपने इमामत का शर्फ हासिल हुआ और आपने इमामत की, और इमामत के बाद एक अज़ीम शान इजलास होता है। मस्जिद अक्सा के अंदर अज़ीम शान इजलास होता है, एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस प्रोग्राम में शिरकत होती है, तमाम नबियों की शिरकत होती है, और तमाम नबी जो है मिलकर के आता है मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलसे का सदार सौंप देते हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बारी बारी प्रोग्राम पेश करते हैं। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बात स्टार्ट होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बगैर माँ बाप के पैदा किया। पहले अल्लाह की हम्द सना करते हैं, फिर तमाम नबी के सामने बात रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपना दस्ते मुबारक से पैदा किया, बगैर माँ बाप के पैदा किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मुझे रहने के लिए दिया, और फिर फरमाया कि मेरे औलाद में अल्लाह ने नबियों और रसूल को पैदा किया। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आती है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो है अपनी बात रखते हैं, और आखिर में आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की हम्द सना करने के बाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा है, मुझे अल्लाह ने रहमत बना करके मुबअ्ज़ फरमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमत बनाया है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, बातें खत्म हो जाती है और जलसा खत्म हो जाता है, जलसा खत्म होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देते हैं। एक रिवायत के अंदर आता है कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद जब तमाम अंबिया बाहर निकलते हैं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी मस्जिद से बाहर निकलता हूँ। जब बाहर निकलता हूँ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है मेरे सामने दो प्याले पेश करते हैं। रिवायत के अंदर आता है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम जो है मेरे सामने मस्जिद से जब बाहर निकलता हूँ 2 प्याले पेश करते हैं, उसमें से एक प्याला दूध का था, एक प्याला शराब का था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने दूध वाले प्याले को इंतखाब किया, मैंने दूध के प्याले को चुना, मैंने दूध के प्याले को उठा लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख कर बोला, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीने फितरत को चुना, आपने दीने फितरत को चुना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप दूसरे प्याले यानी शराब के प्याले को इंतखाब कर लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। एक रिवायत के अंदर आता है, एक रिवायत के अंदर आता है, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने 3 प्याले पेश किए गए, 3 प्याले पेश किए गए। एक प्याला के अंदर दूध था, दूसरे के अंदर पानी था, तीसरे के अंदर शराब था। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने दूध के प्याले को इंतखाब किया, मैंने दूध के प्याले को चुना। एक रिवायत के अंदर है, तीसरी रिवायत के अंदर है, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मस्जिद से बाहर निकला तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने 4 प्याले पेश किए, 4 कटोरे पेश किए, 4 प्याले पेश किए और 4 प्यालों में 4 तरह की चीज थी। एक प्याले के अंदर दूध था, दूसरे के अंदर शराब था, तीसरे के अंदर पानी और चौथे के अंदर शहद था। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने दूध वाले प्याले को इंतखाब किया, दूध वाले प्याले को इंतखाब किया। आज इस दौरे जदीद के अंदर अगर मुसलमानों के सामने उन 4 प्यालों को पेश किया जाए, एक प्याले के अंदर दूध रख दी जाए, एक के अंदर शराब रख दिया जाए, एक के अंदर पानी रख दिया जाए, एक के अंदर शहद रख दिया जाए, मैं समझता हूं कि 99% मुसलमान जो है दूसरे वाले प्याले को चुनेगा, शराब वाले प्याले को चुनेगा। जिस प्याले पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक दिया था, दुत्कार दिया था कि मैं शराब में हाथ नहीं लगाऊंगा, शब मेराज की रात में जब पेश किया गया, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा आक़ाए मदनी के सामने प्याले पेश किए गए, तीनों मरतबा आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को इंतखाब किया। लेकिन आज जो है मुसलमान के सामने अगर दूध का प्याला पेश किया जाए इनकार कर देता है, शराब का प्याला पेश कर दिया जाए तो खुशी से पी लेता है। आज ये मुसलमानों का हालात है। जरा गौर कीजिए इस वाक़ये पर। अल्लाह के नबी अपने नबी को मेराज पर बुलाते हैं, अर्श पर बुलाते हैं, शराब पेश किया जाता है, नबी छोड़ देते हैं, दूध पेश किया जाता है, नबी पी लेते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों, जिस तरीके से मेराज की रात में नबी ने शराब को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं, दूध को अपनाया, तो आज जिंदगी में अपने दूध को अपना लो, दूध पीने को अपना लो। खुदा की कसम बहुत सारे बीमारियों से बच जाओगे, बहुत सारे बीमारियों से बच जाओगे और बहुत सारे बुराइयों से भी बच जाओगे। इसलिए आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दूध का प्याला को इंतखाब किया, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप दूसरे प्याले को इंतखाब करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आज मुसलमान गुमराह क्यों हो रहा है? आज मुसलमान रुसवा क्यों हो रहा है? आज मुसलमानों की इज्जत के साथ खेला क्यों जा रहा है? आज मुसलमानों की इज्जत का जनाजा क्यों निकाली जा रही है? उसकी वजह यही है कि मुसलमान को जो तालीम नबी ने दी थी, मुसलमान को जो अहकाम अल्लाह के नबी ने दिया था, जो पैगाम करके बतलाया, देख के समझाया, आज मुसलमान उस अहकामात को छोड़ चुका है, उन अहकामात को छोड़ चुका है, उन सुन्नतों को छोड़ चुका है। इस वजह से आज मुसलमान हर जगह रुसवा हो रहा है। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब प्याला पेश किया गया और फिर आक़ाए मदनी ने दूध के प्याले को पी लिया, रिवायत के अंदर आता है कि यहीं से आसमानी सफर का आगाज होता है। एक रिवायत के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुर्राक पर बैठ करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए थे, उसी बुर्राक पर सवार होकर आसमानों का सफर किया। एक रिवायत के अंदर है आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहश्ती सीढ़ी का इंतजाम किया गया, यानी बेहश्ती जन्नत के सीढ़ी का इंतजाम किया गया, लिफ्ट का, कुदरती लिफ्ट का इंतजाम किया गया।
जिस पर चढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आसमानों का सैर किए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर पहुंचते हैं, पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। सबसे पहले आसमान के अंदर जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले दरवाजा खटखटाया जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कि कौन? जिब्राइल फरमाते हैं कि मैं जिब्राइल हूं। फिर फरमाते हैं तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आसमान के दरबान सवाल करते हैं, क्या उनको आसमान पर बुलाने की दावत दी गई है? क्या उनको यहाँ आने के लिए दावत दिया गया है? क्या रब ने उसे आसमान पर बुलाया है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते कि जी हाँ, रब ने बुलाया है, इस वजह से मैं उनको साथ लेकर के आया हूँ। तब जाके आसमान जो है दरवाजा खोल दिया जाता है। मालूम हुआ कि आसमान के अंदर दरवाजा लगा हुआ है, इसलिए कि मेराज की रात में जब आका मदनी पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो दरवाजा खटखटाई जाती है, सवाल और जवाब होता है, दरवाजा खोला जाता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरे आसमान पर जाते हैं, दूसरे आसमान पर जाते हैं जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इस आसमान पर भी सवाल और जवाब होता है, जिस तरीके से पहले आसमान पर सवाल और जवाब हुआ, और इसी तरीके से सातों आसमान पर सवाल और जवाब होता होता आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सातवें आसमान पर मुलाकात होती है। फिर अल्लाह के नबी उससे आगे जाते हैं, सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं, ऐवान बातिल में भी दाखिल होते हैं। फिर 3 तोहफे पेश किया जाता है, 3 तोहफे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है। इंशाअल्लाह उन तोहफों के बारे में इंशाअल्लाह तफसीर से कल के शब में अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह